نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی اچھا جی، تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں۔ پچھلے چیپٹر سب نے ریکارڈنگ سنی تھی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی کو بھی؟ جی سنی تھی، ابھی تک تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی لوگ؟ جی جی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، صحیح تھا۔ اچھا، کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کچھ ایسا جو سمجھ میں نہیں آیا؟ مجھے تھوڑا ہوم ورک کی اس پہ وہ ہو رہا تھا کہ مطلب ابھی ہمیں صرف اس کو دے کے ری رائٹ کرنا ہے۔ دیکھیں بیسک سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے نا، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر اعراب کون سے آتے ہیں۔ صرف وہ ابھی ہمیں اعراب لکھنا بتائے گئے ہیں تاکہ ہمیں اعراب کا کانسیپٹ آئے۔ دوسرا ہمارے پاس ویکیبلری ہو، جب آگے ہم چیپٹرز کو پڑھیں گے نا تو پھر یہ ویکیبلری ہمارے بہت کام آئے گی۔ ابھی 2-3 چیپٹرز کے بعد آپ لوگوں نے سٹوریز کو پڑھنا ہے، جیسے ہم انگلش میں پڑھتے آئے ہیں، اردو میں پڑھتے آئے ہیں چیپٹرز کو، اسی طرح اس کو پڑھیں گے۔ لیکن وہ کب پڑھ سکیں گے؟ جب ہمارے پاس ویکیبلری ہوگی، جب بیت کا ورڈ آئے گا آپ کو پتا ہوگا بیت کا مطلب کیا ہے، باب کا مطلب کیا ہے، مفتاح کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، کتاب، مسجد، قلم، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، لیکن کچھ چیزیں نہیں ہیں تو یہ پھر آپ لوگوں کو نا پھر اس کے میننگز آتے ہوں گے۔ تو ابھی یہ صرف پریکٹس ہے، اور ہوم ورک ایک اینگل سے اچھا اس لیے ہے کہ جب ہم کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں نا تو وہ ہمیں نا بالکل حفظ کی طرح ہو جاتی ہے۔ جی لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب آپ اعراب کو اپنے ہاتھ سے لکھیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ کرسی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کرسی یون ہوگا، ٹھیک ہے نا، عربک میں۔ مکتب لکھا ہوا ہے تو مکتب بن ہوگا۔ آپ یہ پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں جو ہے نا وہ کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ مکتب لکھا ہوا ہے تو مکتبن ہے۔ اسی طرح تھرڈ چیپٹر میں آپ کے پاس الف لام کا کانسیپٹ آئے گا۔ الف لام کے کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بعد 2 پیش بن نہیں پڑھنا، یہ پھر سنگل پیش ہو جائے گا۔ تو یہ صرف کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اعراب کا کہ ہم کیسے اعراب کو یوز کر سکتے ہیں۔ جی اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے ہوم ورک کا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ ایک فائنل ٹیسٹ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ 1-2 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس ہوم ورک کا ٹائم نہیں ہے، یہ ابھی کے لیے چل جائے گا، لیکن جب آپ کا تھوڑا سا کام بڑھے گا نا پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وہ خود کے لیے کرنا پڑے گا، خود کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے۔ اچھا جی، ہم آتے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 2 پہ۔ باقی تو چیزیں کلیئر ہے نا؟ ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی ہم ایز اٹ از اس کو لکھ رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ ورڈ میننگ سب نے یاد کی ہے؟ جی اچھا جی، آج آپ اپنے درس ثانی پہ، درس کہتے ہیں سبق کو، ثانی مطلب نمبر 2۔ تو یہاں پہ ہم یہاں پہ آج ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ اسم الاشارہ ہے،
इस्मुल इशारा मतलब, इस्म कहते हैं नाम को, इशारा इशारा करना, जो इशारा किया जा रहा है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था हाजा, अभी के चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, गालिका। ठीक है, हाजा हमने पढ़ा था करीब की चीजों के लिए, गालिका हम पढ़ रहे हैं दूर की चीजों के लिए। यहां तक कॉन्सेप्ट आप सब लोगों का क्लियर है, और ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। ठीक है, ये आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, और थोड़ी सी डिटेल्स ताकि आप लोगों को याद रहे, अदरवाइज बाद में भी सुन सकते हैं। एक इस्मुल इशारा हमने पढ़ लिया हाजा, जिसका मतलब क्या था, ये, और वो दिस के लिए यूज हो रहा है और करीब की चीजों के लिए, लेकिन सिंगुलर के लिए। ये भी सिंगुलर के लिए ही यूज हो रहा है, और ये दूर की चीजों के लिए यूज हो रहा है। माँ को आप पढ़ चुके हैं, माँ का मतलब भी आपको पता है क्या, ये भी इसमें इस्तेफाम के तौर पे आ रहा है। जैसे आ रहा था ना, वैसे ये भी आ रहा है। मा जालिका, अब ये दूर है, दूर के इसम के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या इसका तर्जुमा करेंगे, जालिका का तर्जुमा हमने क्या किया था, वो। माँ का तर्जुमा हमें क्या पता है, क्या है, वो क्या है। ठीक है, जालिका नजमुन, वो सितारा है। यहां तक समझ में आ गया। जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोनों चीजें उन्होंने ऐड की हुई हैं। हाजा का मतलब ये, दालिका का मतलब वो, और ये करीब है, ये थोड़ा सा घर, ये घर दूर है। दोनों मीनिंग्स उन्होंने यूज किए हैं। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। वजालिका बैतुन, और वाव का मतलब और वो घर है। तो दूर के लिए क्या हम यूज करेंगे, दालिका। इसी तरह नीचे आ जाए, हादा हिस्वानुन, ये घोड़ा है। वजालिका हिमारुन, और वो गधा है। अब आगे फिर हरफ इस्तेमाम को यूज कर रहे हैं, और फिर क्वेश्चन के तौर पर आंसर भी आ रहा है हमारे पास। आजालिका कल्बुन, क्या वो बिल्ली है, वो कुत्ता है। ला, नहीं। जालिका कित्तुन, वो बिल्ली है। अब देखिए यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कैसे, अगर आपने वर्ड मीनिंग्स को अच्छी तरह से याद किया, आपको पता होगा कि फिर हिसान का मतलब क्या है, हिसान का मतलब क्या है, और हिमार का मतलब क्या है। ये जब अभी आप, ये सिंगल एक एक सेंटेंस है, जब आप इसको चैप्टर्स में लेकर आएंगे फिर ज्यादा मीनिंग्स आ जाएंगे आपके पास, इसलिए इन मीनिंग्स को आपने यहीं पर याद करना है। आ के मीनिंग को याद रखना है, दालिका के मीनिंग को याद रखना है, कलबुन के मीनिंग को याद रखना है, फिर ला के मीनिंग को याद रखना है कि ला नहीं के तौर पर आ रहा है। अब ये जो माँ है ना, ये स्टार्टिंग में आता है तो ये नहीं का क्या का तर्जुमा करता है, नहीं का तर्जुमा भी करता है ये। लेकिन ये जब मिड में आता है तो ये और मीनिंग्स के साथ आता है। इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं माँ के, वो इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाए, माँ दालिका, वो क्या है। दालिका सरीरुन, वो पलंग है या बेड है। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। पीछे तक जी। सब। जी मैम आ गया समझ। अच्छा जी। अब हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम मन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, मन हाजा, ये कौन है। मन का तर्जुमा क्या था, कौन। मन हाजा, ये कौन है, वमन जालिका, और वो कौन है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, हाजा मुदर्रिसुन वदालिका इमामुन, वो इमाम है, और ये कौन है, ये मुदर्रिस है, ये उस्ताद है। अच्छा, मुदर्रिस मेल टीचर है। मुदर्रिसतुन, जब तापेश तू आ जाता है वो मुअन्नस को शो करता है, तो वो अलामत मुअन्नस की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मेल टीचर है, वदालिका इमामुन, और वो इमाम है मस्जिद के। तो दोनों का चेंज है। मा दालिका, ये क्या है, सॉरी वो क्या है।
ذالika हजरुन, हजर कहते हैं पत्थर को। ये मीनिंग्स आपके याद रखने की चीजें हैं, ये वोकेबलरी है आपकी। हजर किसे कहते हैं? पत्थर को। और बड़ा कॉमन है, ये भी कॉमन नेम है, क्योंकि हम हजर असवद को पढ़ते हैं, नाम लेते हैं, तो इसलिए हमें पता है कि हजर किसे कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए। हाजा सुक्करुन। अब ये जो तशदीद है ना, ये तशदीद के ऊपर जब जबर आती है ना, तो इसका मतलब है ये जबर है। तशदीद के ऊपर एक लाइन आएगी तो ये क्या होगा? जबर होगी। और अगर तशदीद से नीचे लाइन आएगी तो वो जेर होगी, यानी कसरा। चूंकि हम अरबिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम फतह, कसरा और दम्मा को लेकर चलेंगे। तो ये जो तशदीद से ऊपर एक लाइन है ये फतह है, और तशदीद से नीचे लाइन होगी तो वो क्या होगी? कसरा। हाजा सुक्करुन, ये क्या है? ये चीनी है। सुकर जैसे शक्कर होती है, मीठास, मीठा। तो ये सुक्करुन क्या है? चीनी। वज़ालिका, और वो क्या है? लबनुन, लस्सी। लबन कहते हैं लबन कहते हैं दूध को। लबन वैसे लस्सी को भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? सिर्फ आपने एराब लगाने हैं। इसमें क्या है? सिर्फ एराब है। एराब लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मन पढ़ा जाएगा, मिन नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है? जब हम इस पे एराब लगाएंगे ना, फिर हमें पता चलेगा कि ये वर्ड मन है। मिन का मतलब होता है से। ये क्या है? मन। मिन कर देंगे तो फिर से हो जाएगा, इसलिए एराब की जरूरत होती है। एराब के हेर फेर से भी मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। हाजा सक्करुन वदालिका लबनुन मन जालिका, जालिका इमामुन, आजालिका कित्तुन, ला जालिका कल्बुन, मा हाजा, हाजा हजरुन। ये एराब आप लोगों ने लगाने हैं। और 4 सेंटेंसेस हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इमामुन, हजरुन, सुक्करुन और लबनुन, इनके मीनिंग्स आपके पास आएंगे। ठीक है? शक्कर क्या है? इमाम क्या है? इमाम मस्जिद जो है उनको इमाम कहते हैं। और हजरुन पत्थर है, सुक्करुन चीनी है, और लबनुन दूध है। बस इतना सही आपका आज का लेसन था, इतना लंबा नहीं था। आगे मैंने सोचा था कि मैं आपको 1040 करवाऊं, लेकिन उसमें चूंकि हमारे पास आ रहा है जुमला इस्मिया। और देखिए ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ। देखिए, बैतुन है घर, लेकिन जब हमने अलिफ लाम का इसके साथ इजाफा किया और इसको खास कर दिया, ये फिर ये है इसमें नकरा। बैतुन मतलब इसमें नकरा, और अल बैत क्या है? इसमें मारफा। तो खास घर हो गया अल बैत तू। अब यहाँ पे तुन नहीं है, अलिफ लाम के इजाफे के साथ एक पेश खत्म कर दी गई, अल बैतु। और फिर खास भी हो गया। बैत कोई सा भी घर हो सकता है, अल बैत कोई खास घर है। किताब कोई सी भी किताब हो सकती है, अल किताब कोई खास किताब है। ठीक है? लेकिन ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए ये शॉर्ट सा लेसन है। मैं थोड़ा सा आपको ना ओवरव्यू करवा देती हूँ। देखिए, अब 1040 में आपने खबर पढ़ लेंगे, जुमला इस्मिया पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपके पास आएगा जो दरसुल राबे आएगा ना, वो फिर देखिए मैं आगे लेकर चलती हूँ। ये जुमला कमरिया और शजरिया है, हरूफ शजरिया और कमरिया है। कॉन्सेप्ट आसान है। देखिए ना, अब यहाँ पर आप पढ़ने में आ जाएंगे। अब ये आपने पढ़ना है। अलबैतु फिल बैती, अलमस्जिदु फिल मस्जिदी, अलमक्तुबु मक्तबु अलल मक्तबी, अस्सरीरु अलस्सरीरी। अब ये अला, फी, ये क्या है? ये प्रेपोजिशन लेटर्स हैं। ठीक है? अरबिक में भी जिस तरह इंग्लिश में प्रेपोजिशन लेटर्स होते हैं, इस तरह अरबिक में भी होते हैं। हुआ से पहले आपको इसकी जो है ना वो मैं पूरी ये जमीर है ना, ये पूरा आपको बताऊंगी कि ये कैसे आप इसका तर्जमा कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। फिर इसको साथ साथ ना हम कुरान के साथ भी लेकर आएंगे कि हुआ कुरान में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीजें, ये फिर चैप्टर्स आपके पढ़ने पर आ जाएंगे। इसकी रीडिंग फिर आप लोग करेंगे। जो वर्ड मीनिंग्स होंगे वो कोशिश करनी है पहले देख कर भी आए, और अगर नहीं देखेंगे तो फिर वो यहाँ पर हम क्लास के दौरान ही डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अब आपके पास ये क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपने क्वेश्चंस करने हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर बुक में से ही ढूंढेंगे।
जैसे इंग्लिश में हम पैराग्राफ में से सेम क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते थे ना, उसी तरह से आपने ये नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं और इसमें से आंसर ढूंढने हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी इंटरेस्टिंग होगी क्लास जाकर, जब हम दर्स राबे पे आएंगे इंशाल्लाह। वैसे दर्स सालिस पे भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए मुझे बताइए, कुछ समझ में नहीं आया तो जो है ना वो हम आपस में बात कर लेते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कुछ मुश्किल है तो वो बताएं। जी, सबको सब कुछ आता है, सब कुछ समझ में आ गया है। जी मैम समझ आ गया। अच्छा चलें, जी आ गया। चलें ठीक हो गए। अच्छा जी, थोड़ा सा मुझे पीछे से पहले चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स कोई सुना सकता है? मैं पूछ लूं किसी से? मैं ट्राई करूं? हाँ जरूर ट्राई कीजिए। तबीब किसे कहते हैं? तबीबुन। मॉलेज को। हम्म मॉलेज। हम्म। और कित्तुन। बिल्ली। हाजा वलदुन। ये लड़का है। हम्म। हाजा कल्बुन। ये कुत्ता है। हाजा मुदर्रिसुन। ये उस्ताद है। मेल। चलिए गौर से सुनिएगा। ला हाजा हिस्वानुन। ये घोड़ा नहीं है। नहीं, देखे ना, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा ला नहीं, हाजा हिसानुन ये घोड़ा है। अच्छा, नहीं ये घोड़ा है। जी ठीक। क्योंकि नहीं, हाँ ला के बाद क्या है? फिर हाजा हिसान। ठीक। ठीक। जी आगे कौन आएगा? और शाबाश। जी आगे कोई और आएगा? किससे सुनो? जी फायजा ताहिर है, मलीहा है, परवीन ताज है। यस मैम सुने। जी मैम सुने। अच्छा जी। हाजा हिमारुन। ये गधा है। ठीक। ला हाजा मिंदीलुन। नहीं ये मंदिलुन। मिंदीलुन। अच्छा, ये मुझे वैसे आपके साथ ना स्क्रीन शेयर ही करनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों को नजर भी आता कि हम मैं पूछ क्या रही ये हूँ। रुमाल। ये रुमाल क्या ये रुमाल है मैम ये। वो नहीं ये रुमाल है। हाँ वो नहीं, ये रुमाल है, ठीक है। नहीं ठीक है। अच्छा जी, इसको करें। ये आहाजा मिफ्ताह। ये चाबी है। और कौन करेगा? मैं बोलूंगी। और कौन करेगा इसको? आहाजा मिफ्ताह, इसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा? इसमें हमारे पास तीन वर्ड्स आ रहे हैं, और से देखिए। आ भी है। क्या ये चाबी है। क्या? हाँ, क्या ये चाबी है? शाबाश। अच्छा जी, आगे चले। आहाजा नजमुन। जी परवीन। क्या ये सितारा है। हरा है। क्या ये सितारा है? ठीक है। अच्छा जी, कौन मुझे बताएगा कि मुदर्रिस किसे कहते हैं? मुदर्रिस किसे कहते हैं? उस्ताद को। उस्ताद को। और दीक, दीक किसे कहते हैं? दीकुन। हाजा दीकुन।
मुर्गे को। हाँ जी, मुर्गे। ठीक है, ठीक है ना, मिंदिल कहते हैं रुमाल को। यहाँ पर आपके आप लोगों ने अरबी के एराब डालने थे, बस ठीक है। इतना काफी है। चलें जी। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.